Hello dear students, today we are doing in our competency based learning series lecture 6, that is increasing and decreasing functions, and our target group is class 12th student who has taken mathematics as an optional subject in class 12. Here in competency based learning series, see here, in this series we are covering assertion reasoning problems, multiple choice question problems, as well as case study problems. In this lecture number 6, we are doing chapter 6 of class 12 CBSE NCERT book, application of derivative, and in the application of derivative the subtopic is increasing and decreasing functions, and it is our lecture 6 on AOD. Now we start multiple choice questions with multiple choices, with 4 choices. Question number 10 we have already covered. Now we are doing from question number 11. In this lecture number 6, we have to do few multiple choice questions and assertion reasoning problems as well on the same topic, increasing and decreasing functions. Now we start question number 11. The function fx is equal to x square e power minus x is strictly increasing in the interval. Means fx is equal to x square e to the power minus x. It is a given function, and we have to find out the interval where it is strictly increasing. Means f dash x is equal to x square e to the power minus x, derivative x e power minus x का minus 1 प्लस में e to the power minus x as it is x square का derivative 2x e power minus x, and x is common here, that means minus x plus में 2. For a strictly increasing, here in the question strictly increasing interval, that means this must be is greater or equal to, strictly means is greater than 0. That means e power minus x ये always greater than 0. तो हमें पता क्या करना है, x और माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 2, केवल इसी से पता करना है. यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2. क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं, यहाँ 0, यहाँ 2. लीडिंग कोफिशिएंट इज माइनस, मींस लास्ट में डिक्रीजिंग होगा, ये सर डिक्रीजिंग का, ये इंक्रीजिंग होगा, और इधर फिर से डिक्रीजिंग. मींस 0 to 2 ओपन इंटरवल में ये डिक्रीज होगा. देन therefore option B is the correct choice. Option B is the correct choice. In question number 12 देखते हैं. Question number 12. In question number 12, question number 12 is function fx is equal to cos x minus 2 lambda x. Cos x minus 2 lambda x is monotonic decreasing, means decreasing. Monotonic decreasing means decreasing. Then means when lambda का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ भी fx means f dash x is equal to cos x का डेरिवेटिव minus sin x minus 2 lambda x का 1. That means f dash x is equal to minus here common sin x plus 2 lambda वैल्यू आया. यहाँ क्या रखा है, ये डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीज होने का मतलब है इसके आगे माइनस तो कॉमन है ही है. दिस मीन्स sin x plus 2 lambda must be greater than 0. ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. मीन्स साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू लीस्ट वैल्यू ले लेते हैं. लीस्ट वैल्यू साइन एक्स का क्या है, -1. लीस्ट वैल्यू
क्योंकि हमें ग्रेटर देन तो कम से कम वाला वैल्यू लेते हैं, ज़्यादा वाला तो रहेगा ही पॉजिटिव, कम से कम वैल्यू साइन एक्स का देखते हैं, दैट इज -1, दैट मीन्स -1 प्लस 2 लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, दैट इज 2 लैम्डा इज ग्रेटर देन 1, लैम्डा इज ग्रेटर देन 1/2। तो डिक्रीजिंग के लिए लैम्डा का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1/2, मीन्स ए इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इन द इंटरवल 1 2 functions f(x) = 2 mod x minus 1 plus 3 mod x minus 2 is, तो इंटरवल 1 2 में इसको देखते हैं, 1 2 1 और 2 इसके डाउटफुल पॉइंट है, मीन्स इसके लेफ्ट और राइट में फंक्शंस बदलेगा। तो पहले 1 2 के इंटरवल में देख लेते हैं f(x) होगा क्या। तो f(x) दिया हुआ है यहाँ पर 2x, मीन्स x is greater than 1, x is greater than 1 and x is less than 2, means x is greater than 1 but less than 2, इस इंटरवल में हमें चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मीन्स x माइनस 1 ये वैल्यू तो ग्रेटर देन ऐसे लेना है और x माइनस 2 को 2 माइनस एक्स उलट लेना है, माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा 2x माइनस 1 प्लस 3 2 माइनस एक्स, दैट इज 2x माइनस 2 प्लस 6 माइनस 3x, दैट इज माइनस एक्स प्लस में 4। ये आ गया f(x) का वैल्यू इसके बीच में फॉर x बिलोंगिंग टू 1 2, इसके इंटरवल में। ये कह रहा है ये किस तरीके से, इसका नेचर क्या है। तो इसका f(x) देखते हैं, f(x) इज -1, मीन्स f(x) -1, तो यहाँ क्या होगा, इसका मतलब लेस देन 0, मीन्स ये हमेशा डिक्रीजिंग, दैट इज बी इज द करेक्ट चॉइस, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज functions f(x) = x³ minus 27x plus 5 is monotonically increasing, means increasing। तो यहां देखते हैं f(x) दे रखा है, f(x) पता करेंगे, दैट इज 3x² minus 27, x का डिफरेंशिएशन 1, 3 is common here, means x² minus 9 means x minus 3, x plus 3 इस ईयर, ये दोनों पॉइंट हमें देंगे क्रिटिकल पॉइंट। 0 रखने पर एक x का वैल्यू -3 आएगा, दूसरा 3 आएगा। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हिस्सा 3 वाला 3 से बड़ा वाला इंक्रीजिंग होगा, -3 डिक्रीजिंग होगा और -3 से लेस वाला इंक्रीजिंग होगा। तो सीधी सी बात है कि हमें वैल्यू पता करना है 14th में x किस पर ये इंक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग इंटरवल या तो 3 से ज़्यादा हो, मीन्स या तो x का वैल्यू 3 से बड़ा हो या फिर x का वैल्यू -3 से कम हो। मॉड x में करें तो मॉड x का वैल्यू, मॉड मीन्स प्लस वाले से लेना है, मॉड x का वैल्यू ग्रेटर देन 3, यहाँ से भी लिख सकते थे x² से, या x² को लिख सकते थे मॉड x², यहाँ 9 इज लेस देन 9 होना चाहिए, मीन्स लेस देन a² 3², तो मॉड x² इज लेस देन 3², तो यहाँ से मॉड x इज लेस देन 3 लिख सकते थे। मॉड x यहाँ पर आएगा मॉड x इज ग्रेटर देन 3, लेस देन 3 नहीं, यहाँ इससे नहीं, यही से रिजल्ट सही है, क्योंकि x² यहाँ हमने गलत लगा दिया, x² इज ग्रेटर देन 9 इंक्रीजिंग के लिए, तो यहाँ आ जाएगा मॉड x इज ग्रेटर देन 3। यहाँ से भी डायरेक्ट ले सकते थे, x² इंक्रीजिंग इंटरवल दे रखा है, तो ऑप्शन यहाँ कौन सा आ जाएगा, बी इज द करेक्ट चॉइस। बी दे रखा है मॉड फॉर्म में, चाहे दोनों अलग करके या मॉड के फॉर्म में करें तो x² को, मीन्स ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, फंक्शंस f(x) = 2x³ minus 9x² plus 12x plus 29, ये फंक्शन दे रखा है, इस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मीन्स f(x) लेस देन 0। तो यहाँ से देखते हैं डिफरेंशिएशन, f(x) =
2x³ मीन्स 6x² माइनस 9x² का डेरिवेटिव माइनस 18x प्लस में 12, 6 इज कॉमन हियर, x² माइनस 3x प्लस 6 to the 12, फैक्टर इज x minus 1 x minus 2, तो 3 ऐड करने पर आना चाहिए। ये कह रहा है डिक्रीजिंग है, मीन्स लेस देन 0 दिखाना है। तो हम देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट इसका क्या आ गया, 1 and 2। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ये हिस्सा इंक्रीजिंग जाएगा, ये हिस्सा डिक्रीजिंग इंटरवल होगा इसका 1 2। तो देख लेते हैं 1 2 पर ये डिक्रीज करेगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज इफ द फंक्शन fx is equal to kx³ minus 9x² plus 9x plus 3 is monotonically increasing in every interval, increasing in every interval means for each x belong to the real number, then k का वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ देखते हैं f dash x is equal to 3 into kx² minus 18x plus 9, 3 is common here, kx² minus 6x plus में 3, ये आ गया। अब ये कह रहा है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ये हर एक जगह इंक्रीज करे। तो हर एक जगह इंक्रीज के लिए ये वैल्यू क्या होना चाहिए, मीन्स ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कोई चीज ग्रेटर देन 0 होने के लिए क्या जरूरी है, b पहले तो k इज ग्रेटर देन 0 हो ये, और दूसरी चीज b² माइनस 4 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं b का वैल्यू क्या है 6, तो 36 माइनस 4 इंटू a इज k एंड c इज 3 इज लेस देन 0, दैट मीन्स 12k 36 minus 12k is less than 0, means 12k is greater than 36 because 36 must be less than this, so k is greater than 3। तो ऑप्शन देखते हैं k is greater than 3, c is the correct choice। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहा गया है, तो ये वैल्यू आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है ये लेस देन 0 होना चाहिए। f dash x ग्रेटर देन 0 अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इससे नहीं हो रहा, तो यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। तो इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा था ये, क्वेश्चन नंबर था 16 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है fx is equal to 2x minus tan inverse x माइनस में log x plus root x square plus 1 is monotonically increasing when, ये कब ऐसा होगा, then therefore f dash x, सारा कुछ यहाँ डेरिवेटिव टेस्ट से ही होगा। f dash x is equal to 2x का डेरिवेटिव 2 tan inverse x का minus 1/1 plus x square log x plus root x square plus 1 का माइनस में 1/x प्लस में root x square plus 1, दोबारा इसका करेंगे चेन रूल से x का 1 और यहाँ आ जाएगा 1/2 रूट x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 का दोबारा करोगे 2x आएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये डेरिवेटिव होगा, दैट इज 2 माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर माइनस में यहाँ रूट x स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम आ जाएगा, रूट x स्क्वायर प्लस 1 इधर आ गया रूट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में x डिवाइडेड बाई, एक तो एलसीएम में रूट x स्क्वायर प्लस 1 रहा, रूट x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ नहीं, ये नहीं है डेटा, ये वाला वैल्यू नहीं दे रहे हैं, रूट x स्क्वायर प्लस 1 डिनोमिनेटर में रखेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई इधर वाला यहाँ आ गया, x रूट x स्क्वायर प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में जो पहले से था x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 1 इस फॉर्म में आ गया, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, मीन्स क्या आ गया 2 माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 1। इसके बारे में पता करना है, इसका एलसीएम ले, एलसीएम इज 1 प्लस x स्क्वायर क्योंकि रूट और इसका दोनों का
2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 2x² -1, एक रूट यहाँ रह जाएगा, -√x² +1, ये टर्म्स आ गया। 2 - 1 1 होता है, यहाँ क्या आ गया, इसका मतलब 1 प्लस में 2x², यहाँ -√x² +1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x²। ये डेरिवेटिव आया, इसको हमें प्रूफ दिखाना क्या है, क्वेश्चन नंबर था हमारा 17, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिखाना है, मीन्स ग्रेटर देन 0 पर इंटरवल पता करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस x², क्योंकि ये 1 प्लस 2x² है, 1 प्लस x² निकाल लें, तो यहाँ जिससे 1 प्लस x² अलग से करते हैं, प्लस में x² प्लस x² अपॉन 1 प्लस x², और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस में, इसको करेंगे एक रूट से अलग हो जाए, माइनस में √1 प्लस x², ये टर्म्स आया। यहाँ देखते हैं 1 आ जाएगा, ये वैल्यू 1 आ जाएगा, 1 माइनस से इसको ऐसे रखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ इसको एक ही में रखो। तो इससे क्या होगा, रिजल्ट क्या आया कि 1 प्लस x² प्लस में x² माइनस में रूट ये रखें, √1 प्लस x²। यहाँ से देखें तो 1 प्लस x² और 1 प्लस x² एक ही टर्म में, यहाँ ये है। इससे क्योंकि आसानी से ये क्लियर हो रहा है, यहाँ 1 प्लस x² हमेशा √1 प्लस x² से ग्रेटर होगा, 1 प्लस x² इज ग्रेटर देन √1 प्लस x²। तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा, x² हमेशा पॉजिटिव रहता ही है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये ग्रेटर देन 0 रहेगा, ये ग्रेटर इक्वल, क्योंकि ये वैल्यू 1 से बड़ा रहेगा हमेशा, सिंस x² इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, 1 प्लस x² इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर और इक्वल टू 1। इसका मतलब जो वैल्यू 1 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो अपने स्क्वायर रूट से हमेशा बड़ा होगा, नंबर अपने स्क्वायर से, मींस स्क्वायर हमेशा एक नंबर, इफ ए नंबर इज ग्रेटर देन 1, मींस यहाँ रिजल्ट लगा, इफ a इज ग्रेटर देन 1 देन a² इज ग्रेटर देन a, ये वाला रिजल्ट लगा। तो यहाँ से हमें ये रिजल्ट को ले लिया। तो इस तरीके से ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हमेशा इंक्रीज करेगा। अब हमसे पूछा क्या गया है, x का क्या वैल्यू होगा, क्वेश्चन नंबर हमारा था 17, हमें चाहिए x का वैल्यू चाहिए, x का किस वैल्यू के लिए हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, इंक्रीज नहीं दिखाना हमें कहाँ, तो ये हमेशा होगा, मीन्स x इज, यहाँ पर x ये है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है x बिलोंग टू द रियल नंबर, ये दिस इज द करेक्ट चॉइस। इस सभी x के लिए ये बात एग्जिस्ट करेगा, x 0 भी हो सकता है, तो C इज द करेक्ट चॉइस बिकॉज इट इज ऑलवेज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में दर्ज है, इफ द फंक्शन f(x) = x³ - 9kx² + 27x + 30 इज इंक्रीजिंग ऑन r, पूरे रियल नंबर पर अगर इंक्रीज है तो k का वैल्यू पूछा गया है, मींस यहाँ f(x) इज ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो हमें इसके डिस्क्रिमिनेंट b² - 4 इसी से वैल्यू पता करना है। तो f(x) देखते हैं, यहाँ x³ है, x³ का डेरिवेटिव 3x² - 9k इंटू x² का 2x इंटू 2x प्लस में 27, कॉमन यहाँ 3 है, 3 कॉमन, x² माइनस में 3 इंटू 2 6kx प्लस में 9, दिस इज द वैल्यू। अब ये क्या रखा, ये ग्रेटर देन 0 है, मोनोटोनिकली कहा गया तो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, ये वैल्यू कहा गया है ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, मीन्स ये क्वेश्चन है इंक्रीजिंग क्यों दे रखा है, मीन्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स x² - 9kx, x² - 6kx प्लस 9, ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। तो यहाँ देखते हैं k का वैल्यू, तो इससे क्या रिजल्ट होगा, पहले तो
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 दे रखा हो तो ग्रेटर दे 0 तो ही है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए, मेरे रूट इसका नहीं मिलना चाहिए। बी स्क्वायर मीन्स 36 माइनस 4 इंटू 9 36 के भी है यहाँ पर, के कहाँ गया 6k 36k स्क्वायर 6k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इज लेस देन 0 मीन्स k स्क्वायर माइनस 1 तो 36 यहाँ भी लेस देन 0 मीन्स k स्क्वायर इज लेस देन 1 या k माइनस 1 फैक्टर कर लेते हैं, k माइनस 1 k प्लस 1 इज लेस देन 0 दैट इज k का वैल्यू माइनस 1 और 1 ये लेस देन 0 इसी के बीच में रहेगा क्योंकि इधर ये हिस्सा आ गया लेस देन 0 के लिए, तो k का वैल्यू क्या आ गया माइनस 1 और से 1 के बीच में। अब देख लेते हैं 1 या 1 हो सकता है नहीं, माइनस 1 और 1 इक्वल टू भी देख सकते हैं, तो यहाँ रख के देखना पड़ेगा। अगर k का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है। अगर k का वैल्यू माइनस 1 रख लेते हैं तो मीन्स ये इक्वल भी हो सकता है माइनस 1, तो k ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 1 बट लेस देन 1, तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा हो इसके तरीके से, तो यहाँ दे रखा है इक्वल टू 1 नहीं दिया है तब भी सही है। ये सभी वैल्यू नहीं जहाँ पर इंक्रीजिंग है, जो इसमें ऑप्शन दे रखा ऑप्शन के हिसाब से 1 2 हट में जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये वैल्यू ए वाला ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू माइनस x/2 प्लस साइन x इज डिफाइंड इन दिस इंटरवल -π/3 टू π/3। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही डिफाइंड है। यहाँ मान लो -π/3 है वैल्यू ये एंगल, और यहाँ पर π/3 है, तो इसी के बीच में ही आपको ये फंक्शन डिफाइन है, मीन्स cos x का वैल्यू का कुछ होगा। तो यहाँ देखो -x/2 f' क्या आ जाएगा, f' इज इक्वल टू -x/2 मीन्स -1/2 sin x का cos x आ गया। अब हमें cos x का पता है, cos x अगर इसके बीच में लेना है, if x बिलोंगिंग टू द -π/3 टू π/3 इसके बीच में लेना है, तो cos x का वैल्यू क्या आ जाएगा, cos x बिलोंग टू द cos -π/3 मीन्स 1/2, और यहाँ भी 1/2, तो 0 से लेकर 1/2 तक ही रहेगा वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया कि f' का वैल्यू आपका -1/2 टू प्लस 1/2 से कम ही रहेगा, मीन्स f से ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर -1/2 प्लस 1/2 से ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि इसके बाद में वैल्यू कम होता है, यहाँ भी इसके बाद कम होगा, तो ये वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 रहेगा अगर ये मैक्सिमम वैल्यू रहा तो यहाँ पर क्या आ गया, इसका मतलब ये वैल्यू आपका इंक्रीजेज होगा, उसके लिए क्या होना चाहिए फंक्शन, इसका केवल ये पूछा गया इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा, केवल फंक्शन पूछा गया है। तो ये वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू cos x का वैल्यू हमेशा डिक्रीजिंग होता है, तो यहाँ वैल्यू क्या होगा 1/2 से बड़ा होगा हमेशा, तो ये वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 1/2 है, ये हमने ऐसे लिखा है। ये वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू -1/2 यहाँ फिक्स है, ये वैल्यू 1/2 या 1/2 से बड़ा होगा, cos x इज ग्रेटर देन 1/2 इफ x बिलोंग टू द -π/3 टू π/3। ये रिजल्ट लेकर चलना है, तो यहाँ पर ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 इफ द फंक्शन log x बेस a इज इंक्रीजिंग ऑन r इफ a के बारे में कहा गया है, तो log x का देखें f'(x) पहले f(x) इक्वल टू दे रखा है log x, बेस यहाँ एक्सपोनेंशियल ना देकर a दे रखा है, इसको लिख सकते हैं log x डिवाइडेड बाई log a, बेस यहाँ अपने हिसाब से एक्सपोनेंशियल बेस ले लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जब डेरिवेटिव करेंगे f'(x) तो यहाँ 1/log a बेस e इंटू log x का आ जाएगा 1/x। x हमें पता है log x में हमेशा x ग्रेटर देन 0 होगा, ये डिफाइन नहीं होगा, x बिलोंग टू द 0 टू इनफिनिट, अपने डोमेन में होना चाहिए, तो x तो पॉजिटिव ही है। यहाँ हमें log का देखना है वैल्यू, तो log a बेस e ये ग्रेटर देन 0 होता है इफ a इज ग्रेटर देन 1, और log a
बेस ई ये लेस देन 0 होता है इफ ए का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, 1 कभी होता नहीं है। ये इस तरीके से रिजल्ट है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें चाहिए ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है कि इंक्रीज कर रहा है हमेशा, तो हमेशा इंक्रीज होगा, इसका मतलब लॉग ये वैल्यू लॉग आपका ए बेस ई ये वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ए इज ग्रेटर देन ई पावर 0, ए इज ग्रेटर देन 1, ए इज ग्रेटर देन 1 वाला ऑप्शन सही है, मीन्स बी इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, इफ द फंक्शन cos mod x, अब ऐसे अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिए जाए तो mod x का डेरिवेटिव ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको x मान के कर लें क्योंकि हमेशा ही सही होगा। mod x है तो x के लिए भी सही होगा, तभी रिजल्ट सही है। -2x + b इंक्रीजेज अलोंग द एंटायर नंबर स्केल, पूरे रियल नंबर पर है। यहाँ mod x को लेकर चल रहे हैं क्योंकि mod x का डेरिवेटिव क्या होता है, d/dx। mod x इक्वल टू होता है x अपॉन mod x, x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 पर ये नहीं होता डेरिवेटिव। तो यहाँ हम देखते हैं f'(x) इज इक्वल टू cos mod x करेंगे तो माइनस sin mod x का दोबारा करेंगे x अपॉन mod x, माइनस में 2a, यह है डेरिवेटिव। ये करें इंक्रीज कर रहा है, ये हमेशा इंक्रीज कर रहा है, इस ग्रेटर देन 0 है, तो a का वैल्यू क्या होगा ये पूछा गया है। b तो है ही, b का रोल ही खत्म है, ये दोनों वैसे भी b के ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये तो गलत ही दे रखे हैं। इसका मतलब क्या है, माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ क्या आ जाएगा sin x, ये 1 भी ले सकते हैं, sin mod x अपॉन में mod x इंटू x माइनस 2a प्लस 2a हो जाएगा माइनस कॉमन में। ये कह रहा है ये वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीजेस मीन्स ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर जो आपको दे रखा है sin mod x अपॉन x अपॉन mod x, ये वैल्यू प्लस 2a ये लेस देन 0 होना चाहिए, क्या माइनस कॉमन दे रखा है। अब इसमें x अपॉन mod x में कोई दिक्कत है ही नहीं है, इसको आप हटा भी सकते हो, केवल sin x रखो। अगर sin mod x है तो या ऐसे भी लिख सकते हो sin x की जगह mod x रख दिया गया, मीन्स mod x की जगह x रख दिया गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो sin x प्लस 2a भी लेस देन 0 होना चाहिए। अब ये वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, तो लीस्ट वैल्यू sin x का क्या होता है -1, तो -1 प्लस 2a ये होना चाहिए लेस देन 0। इसका बड़ा वैल्यू है क्योंकि सबसे बड़ा वैल्यू कम दिखा है, तो मीन्स 1 प्लस 2a लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन ग्रेटर होता तो मिनिमम लेते हैं। यहाँ इसका मतलब ये वैल्यू 1 प्लस 2a अगर लेस दे रखा है तो इसका बड़ा वैल्यू, ग्रेटर दे रखा है तो मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ 1 प्लस 2a लेस देन 0 होना चाहिए। इसका फिर 2a क्या होना चाहिए, 2a लेस देन -1 होना चाहिए, a का वैल्यू फिर -1/2 इक्वल टू हो सकता है, ये प्लस आर इक्वल टू, क्योंकि इंक्रीजिंग केवल दे रखा है, इंक्रीजिंग ओनली दे रखा है, यहाँ ग्रेटर इक्वल टू मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दे रखा है, यहाँ पर स्ट्रिक्टली नहीं दिया गया है, तो a इज लेस आर इक्वल टू -1/2, सी इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 22 दिया गया है, x इफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस mod x, इसको दिया गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस mod x मीन्स f(x), क्योंकि सारी चीजें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ही पूछा गया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस mod x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 माइनस में x ऐसे 1 प्लस mod x का डेरिवेटिव x अपॉन mod x, ये वैल्यू आएगा x अपॉन mod x है, mod x अपॉन x कर दो, आसानी रहे, mod x अपॉन x कर दो, इससे कैंसिल हो जाए और आंसर सही से दोनों का एक ही मीनिंग है, mod x अपॉन x कर दो, इससे x कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस mod x का होल स्क्वायर, ये अपने सिचुएशन के हिसाब से x अपॉन mod x
या मॉड एक्स अपॉन एक्स, ये दोनों एक ही हैं। एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 पर डिफाइन है, दोनों का एक ही मीनिंग है। तो यहाँ सिचुएशन के हिसाब से जो जरूरत हो, यहाँ एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1 मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स 0, तो 1 अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स का होल स्क्वायर, ये टर्म्स आया। ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा यहाँ पर, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रखा है। 22 का ए इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 इज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा साइन एक्स प्लस 2 cos x, लैम्डा साइन एक्स प्लस 2 cos x डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस cos x इज इंक्रीजिंग इफ लैम्डा इज, लैम्डा के बारे में पूछा गया, लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, 2 से लेस होगा या ग्रेटर देन। तो यहाँ एफ डैश एक्स सब जगह डेरिवेटिव चेक करना है। साइन एक्स प्लस cos x एज इट इज, साइन एक्स प्लस cos x एज इट इज, लैम्डा साइन एक्स इसका डेरिवेटिव करोगे, लैम्डा cos x माइनस 2 साइन एक्स, माइनस में इस बार न्यूमरेटर कांस्टेंट रहेगा, लैम्डा साइन एक्स प्लस 2 cos x, ये अपनी जगह पर कांस्टेंट रहेगा। डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस cos x का करोगे, cos x माइनस साइन एक्स, ये डेरिवेटिव होगा, डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस cos x टू द होल स्क्वायर। नीचे होल स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, प्रॉब्लम है सिर्फ न्यूमरेटर में, उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा साइन एक्स cos x, फिर साइन एक्स से माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, cos x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लैम्डा cos स्क्वायर एक्स, प्लस लैम्डा cos स्क्वायर एक्स, cos x से इसको माइनस 2 साइन एक्स cos x, यही लिख देते हैं, माइनस 2 साइन एक्स cos x। इसी तरीके से यहाँ माइनस लैम्डा से कर लैम्डा साइन एक्स cos x, लैम्डा साइन एक्स करेंगे माइनस लैम्डा साइन एक्स cos x, फिर से लैम्डा साइन एक्स दूसरा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, एक माइनस ये है, एक माइनस यहाँ, प्लस लैम्डा साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ लिख देते हैं, प्लस लैम्डा साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ लिख सकते थे, चलो कोई नहीं, दोनों एक ही हैं, लैम्डा साइन स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से देखते हैं 2 cos x से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 cos x इंटू cos x, तो 2 cos स्क्वायर एक्स, आगे माइनस लगा है तो माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स, यहाँ लास्ट में माइनस 2 साइन एक्स cos x, एक माइनस और है, प्लस 2 में साइन एक्स cos x, ये न्यूमरेटर रहा। डिनोमिनेटर सबका वही रहेगा, ये डिनोमिनेटर यहाँ डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस cos x टू द होल स्क्वायर, हर एक में लगा रहेगा। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ लैम्डा प्लस में है, यहाँ माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस में है, प्लस में साइन एक्स cos x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लैम्डा माइनस 2 मीन्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स, यहाँ माइनस 2 आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, प्लस में लैम्डा, यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ cos स्क्वायर एक्स, प्लस में लैम्डा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, डिवाइडेड बाई यही वैल्यू जो दे रखा है साइन एक्स प्लस cos एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया माइनस 2 और प्लस लैम्डा में लैम्डा माइनस 2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस cos एक्स का होल स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें वैल्यू तो पॉजिटिव ही है, सिर्फ यहाँ न्यूमरेटर ही देखना है। अब पूछा क्या गया इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कहा गया है तो लेफ्ट ग्रेटर आर इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2, तो करेक्ट चॉइस इज लैम्डा इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2, लैम्डा इज ग्रेटर देन 2 दे रखा है, दैट इज द करेक्ट चॉइस। इक्वल टू ना भी आए जिसके लिए हो, इसका इसमें ज़्यादा वैल्यू भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ कम वाला लिया जाएगा, कम दे रखा है तो कम वाला लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, MCQ का लास्ट क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर, ए पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है, मीन्स एफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स, डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स,
इज इक्वल टू a टू द पावर x log a। अब a का वैल्यू हमेशा यहाँ एक्सपोनेंशियल, अब a के बारे में पता है कि log a ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा इफ a इज ग्रेटर देन 1। तो ये इंक्रीजिंग कहा गया है, a पावर x हमेशा पॉजिटिव है, इस वैल्यू पर डिपेंड करता है, तो ग्रेटर देन 0 होगा इफ a इज ग्रेटर देन 1। तो a इज ग्रेटर देन 1 देख लेते हैं, d इज द करेक्ट चॉइस। डी ऑप्शन पर ये इंक्रीज करेगा, बाकी इस पर नेगेटिव आ जाता है, यहाँ डिक्रीज कर जाता है, ये ऑप्शन नहीं है। इसी तरीके से देखते हैं हम नेक्स्ट जो है असर्शन रीजनिंग प्रॉब्लम्स है। इसमें असर्शन रीजनिंग प्रॉब्लम्स ज़्यादा बने हैं, तो इन पर देखते हैं। असर्शन रीजन बेस्ड एमसीक्यू में क्या होता है कि देयर आर 4 चॉइसेस A, B, C and D। इफ स्टेटमेंट 1 and statements are given, 2 statements are given, statement 1 is the assertion, statement 2 is the reason। if statement 1 and statement 2 both are true and statement 2 is the reason of the statement 1, then we have to mark A। if statement 1 and 2 both are true and there is no link, but there is no link between statement 1 and 2 means there is no reason statement 2, then we have to mark B। statement C, if statement 1 is true, option C we have to mark if statement 1 is true and statement 2 is false, and at the last if first statement, that means assertion itself is not true, only reason means there is a statement which is given as a reason is true but statement is false, then option D we have to mark। Now we start the question, statement 1। Statement 1 is, here statement 1 is assertion, the function fx is equal to x cube minus 3x square plus 6x minus 10 is strictly increasing on R। ये करें हमेशा इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन इट मे बी ए परफेक्ट स्क्वायर। तो देखते हैं यहाँ पर f डैश x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, यह आया। 3 इज कॉमन हियर, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2 मीन्स ये वैल्यू ग्रेटर देन हमेशा 0 होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट तो प्लस ही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होना चाहिए। तो बी स्क्वायर देखते हैं 4 माइनस 2 इंटू 4 8 लेस देन 0 है, 2 है ये। इसका मतलब क्या हुआ, ये दैट मीन्स ये ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन आर। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट, अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव मीन्स 1 1 फंक्शन। जो फंक्शन इंक्रीज करेगा, कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है वो हमेशा 1 1 होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन अगर एक्स पे कोई भी डालें तो हमेशा एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा। तो ये इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज ऑलवेज 1 1 फंक्शन। 1 1 मीन्स इंजेक्टिव मैप, तो दिस इज आल्सो ट्रू, बट इट इज नॉट द रीजन, बिकॉज रीजन फ्रॉम डेरिवेटिव और ग्राफ से किया जाता है, इससे 1 1 से प्रूफ नहीं होता। तो इसका मतलब है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू बट देयर इज नो डायरेक्टली लिंक बिटवीन स्टेटमेंट 1 and 2। तो बी इज द करेक्ट चॉइस if both statement are true and reason and statement are different। Second question, question number 2, statement 1, assertion is the function fx is equal to x minus 2 the whole square is increasing on this। statement 2, f dash x is less or equal to 0 for all this, means simply सी बात है, f dash x less or equal to 0 और उधर दे रखा है f dash x, इसमें f dash x ग्रेटर देन 0 से निकाला गया है। वे दोनों में से कोई एक कर लें तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाता है, तो एक दूसरे से लिंक्ड है। कोई भी फर्स्ट देख लेते हैं, मींस पहले तो फंक्शन ही देखेंगे, एक दूसरे का रीजन तो है ही है। स्टेटमेंट 1 2 का रीजन है, 2 1 का रीजन है। तो f x इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर। f डैश x करेंगे ट्वाइस x माइनस 2, यहाँ पर डेरिवेटिव इसका फिर से x प्लस x माइनस 2, तो दोनों के डेरिवेटिव एक ही हैं। तो यहाँ क्या आ गया, f डैश x इक्वल टू 2x माइनस 2, यहाँ 2x माइनस 2 हो गया, 2 बाहर आ गया,
दैट इज x माइनस 1। तो यहाँ आ गया 4x x माइनस 1 x माइनस 2। अब यहाँ एक साथ ही पूरे नंबर लाइन पर देखेंगे क्या क्या रूट आ रहा है, 0 रूट आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ x x x सब पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इंक्रीजिंग है, 1 to 2 डिक्रीजिंग है, 0 to 1 इंक्रीजिंग है और माइनस इनफाइनाइट टू 0 डिक्रीजिंग है। तो यहाँ दोनों बातें एक ही रिजल्ट से मिल रहा है। ये हिस्सा आपका डिक्रीजिंग है, मेरा टेस्ट एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 है। 1 to 2 भी लेस देन 0, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। उसके बाद स्टेटमेंट 1 0 to 1 एंड 2 to इनफाइनाइट, इसमें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, दोनों एक ही बात है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू एंड सेकेंड इज रीजन, बिकॉज इसके लिए डिक्रीजिंग निकाल दिया गया तो बाकी जो है वो अपने आप इंक्रीज। तो यहाँ करेक्ट चॉइस इज ए, मींस बोथ स्टेटमेंट इज ट्रू एंड देयर इज अ लिंक बिटवीन 1 एंड 2, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है पूरे नंबर लाइन पर, या तो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो दोनों लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट 1 असर्शन द फंक्शन fx इक्वल टू लॉग, ये नेचुरल लॉग को ln लिखते हैं, लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन x प्लस 2। यहाँ इसका मतलब लॉग बेस ई, लॉग बेस ई को यहाँ पर लिख दिया जाता है ln। तो ये दे रखा है डिक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन, ये हमेशा डिक्रीज ही कर रहा है अपने पूरे डोमेन में। तो देखते हैं सही नहीं सही है। तो देखते हैं f डैश एक्स इसके पता चलेगा, f डैश एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, माइनस में 2x अपॉन x प्लस 2, माइनस इज कॉमन हियर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में, x प्लस 2 माइनस 2 भी कॉमन कर देते हैं, x प्लस 2, x का डेरिवेटिव 1 माइनस में x प्लस 2 का भी 1 ही उत्तर होगा। तो ये आपका फंक्शन आया, मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, यहाँ आ गया माइनस में 2, यह x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये टर्म्स आया। एलसीएम क्या आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस एक्स मीन्स एक्स प्लस 1, एक तो ये आया एलसीएम, दूसरा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आया, यहाँ से एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इधर गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 4 माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 4x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स ये दोनों हट जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये टर्म्स आया। ये आपका क्रिटिकल पॉइंट नहीं देगा, ये नहीं देगा, तो बस ये केवल देगा कि एक्स इज स्ट्रिक्टली अगर है तो एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस 2, लेकिन चेंज कौन करेगा, एक्स प्लस 1। तो यहाँ एक कहा गया इज डिक्रीजिंग इट्स डोमेन, तो ये हमेशा डिक्रीज नहीं कर रहा है क्योंकि एक्स प्लस, अच्छा डोमेन भी कहा गया है, राइट। डोमेन इसका क्या है, 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन माइनस 1, मीन्स ये x इज ग्रेटर देन माइनस 1, तो यहाँ आ भी रहा है ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा इफ x इज ग्रेटर देन माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 से मीन्स x प्लस 1 अगर ग्रेटर देन 0 तो ये हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, तो सबके सब ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, देयर इज नो डाउट, ठीक है, स्टेटमेंट 1, क्योंकि अपने डोमेन में हमेशा ये ग्रेटर देन 0 है, लेकिन हमें चाहिए लेस देन 0। यहाँ कहा गया है डिक्रीजिंग दे रखा है, तो ये गलत है, इंक्रीज होना चाहिए। यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है एक्स प्लस 1, आपका ये पॉजिटिव आ जाएगा तो ये गलत है, तो ये फर्स्ट गलत है, मीन डी थर्ड में पहला स्टेटमेंट ही गलत है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि डिक्रीजिंग दे रखा है, इंक्रीजिंग होना चाहिए। दूसरा पार्ट देख लेते हैं कि दूसरा पार्ट सही है नहीं, स्टेटमेंट सही होना चाहिए। स्टेटमेंट 2 दे रखा है डोमेन fx log 1 प्लस एक्स माइनस 2, अच्छा इसी में दे रखा है ये भी चीज़ है, डोमेन इसका दे रखा है कि इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन देख लेते हैं क्या है सेकंड वाले में। तो log 1 प्लस एक्स दे रखा है टर्म्स, तो log 1 प्लस एक्स से
ये कंफर्म हो गया, ये टर्म दे रखा है, इसका मतलब एक्स इज ग्रेटर देन -1। तो यहाँ से एक तो ये हो गया एक्स इज ग्रेटर देन -1। सेकेंड पॉइंट क्या है, 2x अपॉन x प्लस 2, इसका देखते हैं। तो यहाँ पर कोई भी रियल नंबर आ जाएगा, कोई भी रियल नंबर, केवल 2 नहीं होना, -2 नहीं होना चाहिए, इसको छोड़ के। तो हम दोनों का इंटरसेक्शन देखते हैं, एक -1 से इनफाइनाइट तक है, -1 टू इनफाइनाइट, और दूसरा दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है पूरा रियल नंबर -2 को छोड़ के, इसको छोड़ के। तो यहाँ पर ये कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो नंबर लाइन पर जो -1 है उससे कम, -1 से ज़्यादा, -1 से ये वाला टर्म्स, ये करें -2 को छोड़ के, -2 केवल अकेला इसको छोड़ दो, बाकी सब, तो ये आपका कॉमन एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर डोमेन क्या आ जाएगा, -1 टू इनफाइनाइट, दैट इज करेक्ट, डोमेन इसका करेक्ट है। लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत होने, तो डिक्रीजिंग की जगह इंक्रीजिंग होता, तो ये आपका बी ऑप्शन रहता, अदरवाइज डी। तो थर्ड का डी करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेटमेंट 1 असर्शन द फंक्शन f(x) log x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 टू इनफाइनाइट। बिल्कुल सही है। log x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, f dash x इक्वल टू 1 अपॉन x, log x का डेरिवेटिव ln x मींस नेचुरल log x में c। तो यहाँ डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 पर डिफाइन होगा। तो x जब x इज ग्रेटर देन 0 में रखा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, ये दे ही रखा है, कंडीशन सी होता है log x में, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो ये ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। दूसरा दे रखा है gx इक्वल टू e पावर x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r एंड fx एंड फंक्शन fx एंड gx आर इनवर्स टू ईच अदर। हाँ ये भी ठीक है, fx e पावर x और e पावर x मीन्स अगर y इक्वल टू e पावर x है तो log y इक्वल टू x मीन्स क्या हो जाए, x इक्वल टू log y हो जाएगा, x इक्वल टू log y बेसी। तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, इनवर्स है, इसीलिए अगर अगर एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो इस रिजल्ट से भी प्रूव किया जा सकता है। तो यहाँ पर ए इज द करेक्ट चॉइस, क्योंकि इफ एफ इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका इनवर्स भी होता है, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो एफ इनवर्स इज आल्सो, ये रिजल्ट है, इज आल्सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, इट इज कंटिन्यूस। तो यहाँ है कंटिन्यूस, कोई प्रॉब्लम नहीं है पावर एक्स में या log x में, तो यहाँ इससे ये ड्राइव हो सकता है। तो और दिया भी है कि fx एंड gx आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, इस कॉन्सेप्ट से उसको करो। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं और सेकंड वाले रीजन से किया जा सकता है फर्स्ट का क्वेश्चन। तो ए इज द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्टेटमेंट 1 द फंक्शन fx इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाई 4, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाई 4। तो देखते हैं इसका f dash x, सब कुछ इसमें डेरिवेटिव है, 1 अपॉन 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, यहाँ पर इनटू sin x का cos x माइनस sin x, ये वैल्यू आ गया। हमें पता है नीचे का तो परफेक्ट स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर तो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 है ही है। मेन चीज़ यहाँ देखना है cos x माइनस sin x, तो cos x माइनस sin x अगर ये इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन 0 होगा, मीन्स cos x माइनस sin x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो cos x इज ग्रेटर आर इक्वल टू sin x मीन्स cot x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। तो ये तभी होता है जब 0 टू पाई बाई 4 हो, cos x का वैल्यू पाई बाई 4 पर ही बड़ा होता है, पाई बाई 4 तक। उसके बाद में sin x ग्राफ इनका इस तरीके से है, sin x का, और इसी तरीके से cos x का, तो पाई बाई 4 पर मिलते हैं, पाई बाई 4 तक cos x बड़ा रहता है, यहाँ ये वैल्यू, और पाई बाई 4 के बाद में sin x बड़ा होने लगता है, cos x छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर ठीक है, 0 टू पाई बाई 4 में ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, इंक्रीज करेगा, cos x बड़ा रहेगा। उसके बाद तो ए ऑप्शन सही है, मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, द फंक्शन fx इज cot इनवर्स sin x प्लस cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर कहा गया cot इनवर्स अगर करते हैं तो cot इनवर्स में यही होता है, बस माइनस होता है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस होने से 0 टू पाई बाई 4 में डिक्रीज करेगा, ये भी सही स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका लिंक नहीं है कोई उधर। तो इसका मतलब क्या होगा, बी इज द करेक्ट चॉइस। दोनों बातें सही है,
डेरिवेटिव tan इनवर्स और cot इनवर्स में सिर्फ यही रहता है, एक ही डिफरेंस रहता है या माइनस रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो वो इंक्रीजिंग है तो ये डिक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, फिफ्थ वाला बी इज द करेक्ट चॉइस, बोथ आर करेक्ट बट देयर इज नो लिंक बिटवीन ए एंड बी। सिक्स देखते हैं, सिक्स क्वेश्चन है log x sin x, log x फंक्शन fx log sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to pi by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फंक्शन fx इज द कंपोजिशन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, fx का भी तरह स्ट्रिक्टली, ये fx जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन gx इक्वल टू log x ऑन r एंड hx इक्वल टू sin x 0 to। ये भी बात सही है, क्योंकि अगर fx कंपोजिशन है, fx इज द कंपोजिशन ऑफ gx एंड hx, g ऑफ h इस तरीके से है, और दे रखे हैं gx आपका log x है, gx आपका log x है, और आपका hx दे रखा है sin x। तो सही है कि g यहाँ hx, तो आ गया log hx मीन्स log sin x, log hx, तो log sin x, तो ये दे रखा है, सही दे रखा है, तो इससे ऊपर आ जाएगा। अब ये दे रखा है इंक्रीजिंग 0 to pi by 2 है या नहीं है, तो यहाँ देखते हैं, और अगर तो यहाँ पर सबसे पहले इसको देखते हैं, तो क्या आ जाएगा डेरिवेटिव इसका f डैश x इक्वल टू 1 बाई sin x, sin x का cos x, तो ये आ गया cot x, cot x हमेशा 0 to pi by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इज ग्रेटर देन 0 फॉर ईच x बिलोंग टू द ओपन इंटरवल 0 to pi by 2, pi by 2 पर 0 आ जाएगा, लेकिन pi by 2 से कम रहेगा तो 0 to स्ट्रिक्टली वर्ड लग जाएगा। तो ये सही है, स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2, अब स्टेटमेंट 2 है अगर आपका hx और gx दोनों इंक्रीज हो रहे हो तो इनका ऑपरेशन भी इंक्रीज होता है, मीन्स g ऑपरेशन h भी इंक्रीजिंग ही रहेगा। अगर दोनों डिक्रीज कर रहे हैं तब भी इंक्रीज करेगा, मीन्स क्या होगा, दोनों में से एक कोई इंक्रीज या दूसरा डिक्रीज कर रहा हो तभी इनमें डिक्रीजिंग होता है, जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। तो यहाँ इससे किया जा सकता है, स्टेटमेंट 2 इज द ट्रू आंसर एंड स्टेटमेंट 2 से स्टेटमेंट 1 ड्राइव किया जा सकता है, इसी से लिया गया फॉग ऑफ का रिजल्ट। तो यहाँ पर चॉइस इज ए इज द करेक्ट चॉइस। तो जहाँ भी बी और ए में देखना है कि दूसरे से अगर हम ड्राइव कर सकते हैं, ड्राइव किया जा सकता है, तो फिर स्टेटमेंट आपका ए वाला सही होगा। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फंक्शन fx इक्वल टू sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x। इस फंक्शन के बारे में पता करना है, इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं। sin पावर 4x f डैश x इक्वल टू 4 sin क्यूब x इंटू cos x माइनस दूसरे cos पावर 4x का देखते हैं, तो 4 cos क्यूब x, cos x का माइनस में आएगा, माइनस पहले हमने लगा दिया इंटू sin x, ये आएगा डेरिवेटिव। कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, सबसे पहले तो sin x कॉमन है, cos x कॉमन है, क्या आ जाएगा यहाँ sin स्क्वायर x, इधर आ जाएगा माइनस cos स्क्वायर x। ये फॉर्मूला है 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, ये फॉर्मूला है माइनस cos 2x का। तो यहाँ आ गया 2 इंटू माइनस sin 2x cos 2x, sin 2x या माइनस यहाँ लगा दें sin 2x cos 2x, फिर से ये फॉर्मूला 2 sin 2x cos 2x का क्या आ जाएगा माइनस 4 sin 4x, ये आ जाएगा। अब ये कहा गया है कि ये इंक्रीजिंग है, क्वेश्चन में कहा गया है fx डिक्रीजिंग 0 to pi by 4, ये कहा गया 0 to pi by 4 में डिक्रीज हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर sin 4x जी, अगर हम रख रहे हैं कि x 4x को आप सेकंड फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में देख लेते हैं 0 to pi के बीच में, तो ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगा क्योंकि आगे माइनस का रखा है। इसका मतलब x का वैल्यू क्या जाएगा, x बिलोंग टू द 0 to pi by 4 में ये वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा डिक्रीज होगा, लेस देन 0 होगा इस इंटरवल में, मींस डिक्रीज तो सही है, इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो क्लोज इंटरवल में। तो fx इज डिक्रीजिंग करेक्ट है। देखते हैं fx इज इंक्रीजिंग इन pi by 4 to pi by 2, फिर कह रहे हैं fx इंक्रीज करेगा pi by 4 से pi by 2 के बीच में। तो pi by 4 से pi by 2 के बीच में अगर देखें तो यहाँ 4x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4x बिलोंग टू द 4 से मल्टीप्लाई पाई से लेकर और यहाँ पर 3 pi by 2, तो इसमें साइन थीटा आपका आ जाता है
नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट होता है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये भी बात सही है। लेकिन दोनों अलग अलग बातें हैं, वो पहले क्वाड्रेंट में इससे उसका कोई लिंक नहीं है, तो बी इज द करेक्ट चॉइस। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू बट देयर इज नो लिंक बिटवीन, इस दोनों अलग अलग रिजल्ट हैं, दोनों अलग अलग रिजल्ट, कोई पहले क्वाड्रेंट में है दूसरे क्वाड्रेंट में है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट 1, assertion the function f(x) is equal to log cos x is strictly increasing in 0 to pi by 2। देखते हैं कि यहाँ पर log cos x दे रखा है, मतलब नेचुरल लॉग मीन्स log बेस c, यहाँ दे रखा है cos x, f डैश x देखते हैं, f डैश x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 by cos x, cos x का माइनस साइन x होता है, माइनस साइन x, तो ये आ गया माइनस tan x, माइनस tan x निगेटिव होगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे, यहाँ इंक्रीजिंग दे रखा है तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो गया पहले ही, क्योंकि डिक्रीजिंग होना चाहिए, इंक्रीजिंग दे रखा है। उसके बाद में दूसरा दे रखा है log sin x, ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग आ जाएगा, क्योंकि log sin x का देखेंगे तो यहाँ पर आ गया 1 by sin x, ये भी था क्वेश्चन, sin x का cos x, cot x आ गया, cot x हमें पता है ग्रेटर देन 0 फॉर ईच x बिलोंग टू द 0 to pi by 2, तो स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट बट फर्स्ट इज फॉल्स, therefore D is the correct choice। नाइन्थ देखते हैं, नाइन्थ पार्ट है क्वेश्चन का। नाइन्थ कहा गया स्टेटमेंट 1 दे रखा है assertion the function f(x) log x base a, log x base a, ये कई बार क्वेश्चन हो चुका है, log x base a is greater than 1 is strictly, अब x यहाँ दे रखा है तो x belong to the 0 to infinite होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसका डेरिवेटिव देखेंगे f डैश x, f डैश x इक्वल टू 1 अपॉन x आ जाएगा, और यहाँ log बेस a दे रखा है तो नीचे log a आ जाएगा, बेस c, log a पता है a इज ग्रेटर देन 1, और log a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, log a ये ग्रेटर देन 0 में से पॉजिटिव आ जाएगा, ये सब के सब ग्रेटर देन 0 आ जाएंगे, तो f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, gx इक्वल टू log बेस a, वही से दे रखा है, लेकिन इस बार ये दे रखा है 0 to 1, और यहाँ इंक्रीजिंग वर्ड लगा रखा है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर 1 यहाँ डेरिवेटिव करेंगे f डैश x सेकंड वाले का, इसका ये वैल्यू x का वही दे रखा है, gx दे रखा है, तो g डैश x इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन x, log a यहाँ भी होगा बेसी, लेकिन यहाँ दे रखा है a का वैल्यू लेस देन 1, ग्रेटर देन 0 रहेगा पॉजिटिव, तो ये 1 से कम अगर वैल्यू को log लिया जाएगा तो नेगेटिव होता है, इसका मतलब वैल्यू लेस देन 0 आएगा, लेस देन 0 में डिक्रीजिंग होगा, तो स्टेटमेंट, इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट, देयरफॉर सी इज द करेक्ट चॉइस, नाइन्थ का सी इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 10 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट 10, स्टेटमेंट 1 द फर्स्ट स्टेटमेंट assertion is the function f(x) is equal to sin x, f(x) is equal to sin x, f(x) is equal to a, f(x) is equal to a into x plus sin x, a x plus sin x is a strictly increasing function, a belong to the positive number, ये कहना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखते हैं यहाँ f डैश x करोगे, f डैश x इक्वल टू a, x इज x का डेरिवेटिव 1 माइनस कॉस x, 1 माइनस कॉस x ये वैल्यू, अब 1 माइनस कॉस x हमें पता है कि 1 माइनस कॉस x, इफ x इज बिलोंग टू द 0 to a बिलोंग टू द 0 इनफाइनाइट, मींस a का वैल्यू तो पॉजिटिव है ही है, हमें इसको देखना है 1 माइनस कॉस x, तो 1 माइनस कॉस x का वैल्यू हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि cos x के बारे में पता है, cos x क्या होगा -1 to 1, तो इसका मिनिमम वैल्यू अगर ले रहे हो, मैक्सिमम वैल्यू अगर माइनस इसका cos x का ले रहे हो तो 1 आएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, अदरवाइज माइनस ले रहे हो तो प्लस में रहेगा, तो ये वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, बहुत छोटा होगा तो 0 हो सकता है, तो ये इंक्रीजिंग तो रहेगा, तो इंक्रीजिंग फंक्शन ये फर्स्ट वाला तो सही है। सेकंड कहा गया द फंक्शन f(x) इक्वल टू sin x माइनस ax प्लस b इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल x, इसको देखते हैं, a हमेशा पॉजिटिव है, यहाँ पर भी a को पॉजिटिव लेना है, तो f डैश x देखोगे
एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस ए क्या है पॉजिटिव है, तो कॉस एक्स का वैल्यू के बारे में है कि ये हमेशा डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करेगा ये जरूरी नहीं है, हो सकता है ए का वैल्यू 0 टू, मान लो ए का वैल्यू फॉर एग्जांपल आप ए का वैल्यू ले लो, ए का वैल्यू मान लो 1/2 ले लिया, और कॉस का वैल्यू आपने कॉस एक्स का वैल्यू यहाँ x आपको या cos x का वैल्यू 1 ले लिया, मान लो बड़ा वैल्यू सबसे ले लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। मीन्स डिक्रीजिंग वर्ड तो सही नहीं हमेशा के लिए, ये डिक्रीजिंग तभी सही है जब a का वैल्यू तो आपका -1 तो नेगेटिव आ जाएगा, cos x भी आपका उससे छोटा रखा जाए, मीन्स cos x का वैल्यू या तो माइनस में रखा जाए प्लस में वैल्यू, मतलब a को इस तरीके से ना एडजस्ट किया जाए, तो ये दोनों बातें हो सकती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो सकता है, तो सी इज द नॉट, ठीक है, करेक्ट, तो ये सी इज द करेक्ट चॉइस, मीन्स स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, क्योंकि यहाँ दोनों बातें हो सकती हैं, तो 10th का भी सी वाला ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से दिस वाज ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। अब नेक्स्ट हमारा होगा मैक्सिमम मिनिमम पर, एंड जो हमारा कमिटमेंट था कि 50% क्वेश्चंस वी विल प्रोवाइड यू सॉल्व क्वेश्चन एंड 50% क्वेश्चंस आर अनसॉल्व क्वेश्चंस, बट hints will be provided in this lecture 1 2 3 we have done the first topic, the rate of change of the function. In second lecture 4 5 6 we have provided more than 50% questions, or the hint is given in the unsolved questions, but hint is provided, and less than 50% questions are solved questions. Now we will do maximum minimum in our next lecture, but in maximum and minimum we have to cover case study problem, because in most of the CBSE sample paper the case study based problems are coming from this chapter, means maximum minimum topic. Okay, thank you.